So, postmortem folder. Postmortem. SPP six. आपने जनाब I believe you've only attended 3 or 4 lectures. 4-5 चलिए, we can increase 1 or 2. So how do you expect me to rate in so many things? But this would be unfair that if I treat you along with others at the same. So we need to talk something. जी नहीं, वो सिफारिश तो अपनी जगह है, but I don't know what is the university's policy about it. So we need to find a way out. So we were trying to see the comparison, draw a comparison between the agreement on agriculture and the SPS agreement. And initially, as I said, that we had the agreement on technical barriers to trade under the Tokyo round, and they were known as standards code. And this was the TBT agreement, in fact, under the WTO was known as the standards code. If you remember, and Tokyo round तक हर agreement को code कहा जाता था, anti-dumping code, like subsidies code, standards code, valuation code. And from Tokyo round onwards, when we started, we came to Uruguay round, तो फिर ये agreements की शक्ल ये आनी शुरू हो गई. And prior to the negotiation of SPS agreement, many food safety and animal health plants regulations, rules and regulations, they fell within the scope of the plurilateral agreement under the Tokyo round, and they were known as standards codes. Now, since they were plurilateral, they were not binding on others. They were only binding on the countries which had signed them. So the code basically permitted the countries to go for protection of human beings and animal plant health and protection of environment, animal welfare, religious considerations, and even national security motives. And considering the reforms brought under the agriculture sector and the trade negotiations, it was felt that these regulations would be adopted as a protection measure. So to bring those rules within a framework that they should not be used as a protection tool, it was decided to go for a separate technical separate agreements, and as a result of that we had 2 detailed agreements. Number 1, the technical barriers to trade, which was there to strengthen, clarify and give more procedural aspects to the rules, and the new agreement which was concluded was the agreement on sanitary and phytosanitary measures. So we'll try to skip the few things which are quite easy and just readable, and we'll go to slide number 14. Now, if we see the scope of the agreement on sanitary and phytosanitary measures, we'll see that the agreement defines its scope as a function of the objective of the measure to ensure food safety and animal plant health and protection. Now, this food safety is not the food safety which we refer to the provision of foods, the safety of food, the safety like shelter and food. It's not that. Its food safety is on account of the health, human health, and consequently products or processes or production methods
are covered under the provisions. Now, if we'll stop here for a moment and we'll try to see that how products, processes and production methods are covered under this system. We have not yet defined what is sanitary or fire sanitary. We'll define it later, but we'll see first what is the scope, what is the coverage, what it covers, what is it all about. And to talk about that, for example, if how can we explain the concept of process? Product we all understand, and when you learn about sanitary and fire sanitary in a moment, you will come to know how it affects the products. But if you are talking of processes and production methods, how sanitary and fire sanitary measures can affect these. And the example could be like slaughterhouses, where you slaughter the animals, you pack them for exports or things like that. Or there was a big case way back when European Union, which imports a lot of fisheries from Pakistan, one fine morning they came to Pakistan and went to see the fish harbor or the fishery section in which the fish is caught, preserved and packed and then exported. And few of them, people say that they just fainted out to see in what conditions the fish they were eating was being packed. So that is the process. So what they did was, they in fact they supplied proper refrigeration facilities to the fish harbor. They supplied the equipment on which they would they would get the fish, pass it through conveyor belts, refrigerated conveyor belts, things like that, and lot many others. Anybody who's familiar with fisheries can understand that. And that was done basically to create hygienic conditions for the food which was packed and processed and packed for them. It was basically for food safety, human safety. Eatables. I didn't get you. What do you mean by tangible safety? No, food safety to protect their human health of their human beings. अगर आप जिस जगह पे fish pack कर रहे हैं, अगर आप कभी गए हैं वहाँ पर, नहीं गए, इसीलिए you are saying that if you go there, तो वो तो बंदा शायद उसके 3 मील के फासले से बेहोश होना शुरू हो जाता है. So you've seen that. But now things are different there. European Union, who's the major importer. What happened? Now I wanted to give you this example, that European Union was interested in importing fish from Pakistan. That is why they came down to Pakistan and improved the hygienic conditions of the fish harbor or whatever place that is called. Had they not been interested in it, had they got an opportunity of getting that very fish from elsewhere at a lower rate, what would have happened? They would have imposed these sanitary conditions and stopped the import from Pakistan. So it was their interest to import that fish from Pakistan. They came down to Pakistan, they equipped the fish harbor, they provided it with facilities which would not let the fish go rot. So, and some of the examples, like I said, was the slaughterhouses and sanitary and fire sanitary measures applied to domestically produced food, local animal, plant diseases, products coming from other countries, and on account of suppliers, and in regard to again public health conditions. Now what is a definition of SPS? Now I'll stop here for a moment. I'll take you back to TBT. What was the definition of TBT? Technical regulations imposed to ensure human, animal or plant health. अच्छा, उसमें technical regulation को we did not define as such, but we tried to understand that with an example कि अगर आप human की बात कर रहे हैं और उसके अंदर जब कोई आप ऐसी चीज़ नहीं होगी कि जो उसकी health को injure करेगी, then we gave examples of fish कि वो जब तक एक certain size की नहीं हो जाती है, अगर आप animal को बचाना चाह रहे हैं, उस species को बचाना चाह रहे हैं, वो जब तक एक ख़ास maturity नहीं attain कर लेती, you will not catch that. Now what is sanitary and what is phytosanitary? Now sanitary measures are those related to human or animal health.
and phytosanitary measures deal with the plant. So this is the basic difference. Probably you asked that question. So the example could be the protection of a fish, and wild fauna, forests and wild flora are included in this definition. अगर आप phytosanitary की बात कर रहे हैं तो एक certain किस्म के जो fish है या plant है उसको आप save कर रहे हैं, और environment की बात कर रहे हैं. And the SPS further narrows this broad definition to a limited situations, and we'll see what those situations are. Number one, now this will explain you it in a better manner. Where there is a case of protection of human or animal life or health from risks arising from additives, contaminants, toxins or disease causing organisms in their food. So this is a case of SPS. So you had a question on it. So what it is, what have you understood? Well said. It says that if it is protection of human or animal in respect to additives, जो आपने उसमें, what are additives? Preservatives. Can you name any preservative? Citric acid. Citric acid is one of the preservatives. Then you got contaminants, toxins, और कोई ऐसी चीज़ आपने फूड में डाल दी है जो, for instance, शाही सिपारी का, if you are familiar with it, it has got some material, it can cause so many things. It is, some say it is cancerous also. Like there is a material added to it. Now, the concept that a product has got something in it which is going to affect your health is covered under the phytosanitary measures. The condition that a product should not have it is a technical regulation. If a thing has, obviously इसका भी हेल्थ का है, लेकिन उसमें फ़र्क यह है कि इट सेज कि अगर प्रोटेक्शन है कि आपने एडिटिव डाल दिया है और उसमें आ गया है, एंड इफ़ यू आर एट दैट स्टेज, तो SPS will apply. Like this will be cleared further. Restrictions on import of oranges containing a certain level of pesticide residue. अब अगर आप पेस्ट उसके ऊपर आपने स्प्रे किया है कि उसकी क्रॉप ठीक रहे, उस पर गड़बड़ ना हो, तो अब बाय द टाइम दैट ऑरेंज मैच्योर्स इज रेडी, आपने उसकी फ्यूमिगेशन करते हैं, फिर उसकी वैक्सिंग करते हैं. आर यू फेमिलियर विद वैक्सिंग? ऑल वैक्सिंग इज व्हेन यू आर एक्सपोर्टिंग सिट्रस, यू स्प्रे वैक्स ऑन इट, तो उसके जो पोर्स हैं ऑरेंज के, दे आर सील्ड, so nothing goes into it, nothing comes out. The moisture is retained inside, the outside bacteria doesn't go into it. तो उस वक़्त, उस स्टेज के बाद, if it has got some level of pest in it, so then it is an SPS measure. इस केस में टेक्निकल बैरियर ये हो सकता है कि आप ऑरेंज को, साइज़ को, जब आप ग्रेडिंग कर रहे हैं तो ऐसा ऑरेंज ना तोड़ें या जिसकी वजह से उस ऑरेंज की वो जो लाइफ है वो ख़त्म हो, जिस तरह साइज़ की बात है. And then regulations applied to imports of poultry products containing, it's difficult for me to pronounce it, it's salmonella, whatever it is, and are examples of typical SPS measures. अब what is this? अब या कोई veterinary drug आपने दी है poultry को, अब if that drug which has gone into the body of the chicken or the lamb or whatever meat it is, and by adding to its meat humans take it, so this is an SPS. आजकल जो है भैंसों और गायों को ज़्यादा दूध देने के टीके लगाए जाते हैं, and people say that they are injurious to them. ये it's a technical question. I will not be able to answer that, क्योंकि एक तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड से ये कोई मसला रिलेट करता है जो आप कह रहे हैं, उसको इंजेक्ट करके दे ट्राई टू एक्सट्रैक्ट मोर मिल्क. अब ड्यूरिंग दैट प्रोसेस दूध में क्या ख़राबी आती है, उस जो आप ड्रग उसको देते हैं, या नहीं आती है, या सिर्फ उसका एक कैटलिस्ट एजेंट एक तेज़ उसका सिस्टम को तेज़ करता है, पता ये तो वेटनरी कैन ऑब्वियसली क्योंकि वो यहाँ पर आ जाएगा ना. एनी कंटेमिनेंट्स, टॉक्सिन्स, डिजीज़ कॉजिंग
फूड के अंदर आ जाएगा। जेनेटिकली आप GM फूड्स की बात करें, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, इट्स टेक्निकल थिंग। अगर अगेन इफ इट इज गॉट, अगर वो इस जगह पे कहीं फॉल करता है, उसमें अगर कोई रेजिड्यू रह जाता है उसका, और या कोई ऐसा कोई मटेरियल है प्रिजर्वेटिव, उसमें इस तादाद में प्रिजर्वेटिव पड़ गया कि फाइनली वो ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट कर रहा है, देन इट विल बी इन SPS। लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू तो कम होती है उसकी डेफिनेटली। No, good question. Where would nutrition value go? Technical regulation or SPS? It will be a technical regulation. क्योंकि आपने ये डिटरमिन कर दिया है कि this is a say it's a processed food, it has got vitamins A, B, C, D, E, इतने मिलीग्राम, इतनी मिलीग्राम, इतनी मिलीग्राम. Now that has got to be उस स्टैंडर्ड का होना चाहिए. And now to have that amount of vitamins, it's a technical regulation. लेकिन उस जो प्रोडक्ट पे आपने लेबलिंग जो की है उसके मुताबिक तो नहीं है ना. And then veterinary drugs given to farm animals, जो कि again जो उसके body में चला गया and then you eat it, it's again there. And other human risks such as nutrition concerns, कि आप ये आई गई है सामने example. And then medical treatments or car safety risks, they don't fall into SPS, they would go into TBT and they would qualify under the technical regulation. Shahzad, have you understood the difference between, now what is it? Now what is the difference between SPS and TBT? पहले तो आप मुझे ये बताइए व्हाट इज सैनिटरी एंड फायर सैनिटरी, फिर मुझे बताइए TBT क्या है, फिर मुझे समझ में आएगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है. अच्छा चलो, मे बी यू वुड लाइक टू आंसर दैट इन क्वेश्चन पेपर. नेक्स्ट. नहीं, ये मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी है, ये दोनों में नहीं है. हाँ, ये टेक्निकल रेगुलेशन में ये आएगा कि शुगर में जो आप प्योरीफाइज डालते हैं या वाइटनर्स डालते हैं, 19% इट इज, अभी हम वी आर नॉट गोइंग इनटू स्पेसिफिक्स, वी आर गोइंग इनटू द कॉन्सेप्ट. शुगर का वाइटनर, शुगर में एडिटिव्स जो डालते हैं उनकी एक मिनिमम एक्सेप्टेबल रेंज है. ग्रेन इज स्पेसिफिकेशन, सम लाइक फाइन ग्रेन, सम लाइक गोल्ड ग्रेन. किसी को पतली चीनी, यूरोप में पतली चीनी चलती है, एशिया में मोटी चीनी चलती है, ऑल्दो मीठी दोनों ही उतनी होती है. आई डोंट नो व्हाट इज द डिफरेंस. जी हाँ, तो ये टेक्निकल में ही है ना जी. नेक्स्ट. जी जी जी, वी कैन कम बैक प्लीज. Do not fall within this category and they fall into TBT. आपने पहली स्लाइड की बिल्कुल ऐसी तैसी फेर दी है, वापस आए ना ज़रा. Now I want you to read this first one and then explain it. Contaminants, food is produced for eating, na? So it will be classified under SPS. Next. Now this was case number 1 जहाँ आप SPS लगाएंगे. Number 2 में है protection of human life from plant, animal or carried diseases. What do you understand by this? The threat of plant or animal carried diseases can be illustrated by measures like preventing example of spread of rabies है जी, मैडकॉव वाला भी आ जाएगा जी इसमें. और banning import from meat and meat products originating from foot and mouth. Now what is foot and mouth disease and how many of you have seen that?
खाते क्यों हैं, वो है क्या चीज़? Has anybody gone into the details? सर जो घास जिसके ऊपर वो चलते हैं वही ये खाते हैं, उससे ये समथिंग लाइक इसमें देखिए अब पाकिस्तान को अल्लाह मियां ने क्या कुछ नहीं दिया। इन इफ़ यू गो टू यूरोप, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव बीन, वहाँ पर या तो आप देखें कई पार्ट्स में मुसलसल बारिश हो रही है, ये डैम्पनेस है, सूरज निकलता ही नहीं है। वो जो फोर वेदर्स जो एक नेमत होती है अल्लाह ताला की, कि वो आपको गर्मी भी आती है, बहुत ज़्यादा हीट भी आती है, जर्म ख़त्म हो जाते हैं, ड्राई सीज़न होता है, तो वो कई इलाकों में वहाँ नहीं है। तो उसकी वजह से जो इसका जो रूट कॉज निकली है वो ये है कि दिस डैम्पनेस एंड परसिस्टेंट वेदर क्लाइमेटिक कंडीशंस, उससे वो बीमारी आई ये फुट एंड माउथ। बट दिस इज़ डिफरेंट टू दैन मैड काउ। नाउ व्हाट वाज मैड काउ? जी जो बेसिकली जो फूड काउस को दिया जाता दैट वाज मेड ऑफ रेसिड्यूज फ्रॉम जो बुचरीज वगैरह के जैसे। अब दिस वाज अगेंस्ट गोइंग लॉ ऑफ नेचर। नाउ व्हाट लॉ ऑफ नेचर सेज कि जो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स, हर्बीवोर एंड कार्निवोर्स। तो जो हर्बीवोर्स हैं उनको आप अगर खून या गोश्त की चीज़ें देंगे तो दिस इज़ व्हाट मैड काउ डिड। और ये तो काउ के साथ हुआ। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन दोज हु हैव ईटन मैड काउ स्टफ। पोल्ट्री इंडस्ट्री में भी है ये, यू आर राइट। लेकिन पोल्ट्री में इसलिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं है कि पोल्ट्री अगर आप देखें, नॉर्मल अगर आप चिकन को भी देखें जो जिसको आप प्रोसेस्ड फीड नहीं दे रहे या जो देसी जिसको कहते हैं, तो इट वुड ईट इवन अर्थवर्म्स। वो उसकी नेचर में है वो चीज़ खाना। लेकिन उसमें और ऑब्जेक्शंस हैं, उसमें ये नहीं है, उसमें ये नहीं कि आप उसको, अब चिकन जो है इट कैन ईट एनीथिंग, वो वर्म भी खा लेता है, वो कीड़ा मकोड़ा भी खा लेता है, वो हर्बीवोर भी है। इसमें ये होता है कि जो इसके जो डिसीजेज को कंट्रोल करने के लिए जो मेडिसिन वगैरह यूज़ होती है ना, तो फिर वेरी हार्मफुल आता है। और साथ के तौर पर अगर उन्होंने कोई उसकी कोई बीमारी के सिलसिले में रुकावट डाली है तो वो जिंदा मार के 15-20 दिन पहले 2 हफ्ते तक उसकी दवाई पे लिखा हुआ है कि आप उसको खा नहीं सकते। तो हमारे यहाँ ये है कि वो पूरे ला के दिए। अब देखिए, अब इफ़ यू आर टॉक्ड अबाउट पोल्ट्री, अब कितनी पोल्ट्री आपके मुल्क में लग सकती है और एक्सपोर्ट हो सकती है? आपको चाहिए क्या चीज़? इसकी मशीनरी किस साइज़ की होगी? नॉट मोर देन बिगर देन दिस रूम। कि जहाँ पर आपने उसको स्लॉटर भी किया है, वो एक मशीन उसको ज़िबा तो आपने कर दिया, उसको वो ड्रेस भी कर देगी, उसको साफ़ भी कर देगी, और उसके बाद सीधा आप उसको चिलर में फेंकेंगे, उसको डीप फ्रीज़ करेगी और आप उसको सीधा एक्सपोर्ट कर दें। लेकिन हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें ये हमारे यहाँ सैनिटरी फायर सैनिटरी जो कंडीशंस हैं वो ऐसी हैं कि बाहर की दुनिया हमसे ले ही नहीं सकती। कितनी लैंड है हमारे पास, अबंडेंट लैंड है जो कि कल्टिवेट भी नहीं हो रही। और ये जो पोटोहार का आपका रेंज है, इसके अंदर इतनी ज़बरदस्त पोल्ट्री की फैसिलिटी है। पोटोहार से आप कंट्री चले जाते जाएं, सारे आपके पोल्ट्री फार्म्स तो इधर ही आना, बिकॉज दे गिव यू एन एक्सीलेंट climatic condition to grow to raise poultry and to establish poultry farms. लेकिन we cannot do it. अब दुनिया में कितनी डिमांड है पोल्ट्री की? मेरे ख्याल है इतनी शायद या बीफ की है और या पोल्ट्री की है, मटन की तो खैर बहुत कम है। तो बट वी आर इंडस्ट्री कैन नॉट डू दैट। द रीज़न बीइंग कि हम एक छोटा सा इससे डबल द साइज ऑफ दिस यूनिट कर लीजिए, इससे ज़्यादा में तो आपको जगह ही नहीं चाहिए वो प्लांट लगाने की। एनीवे जी, किस चीज़ का? पोल्ट्री का रॉ मटेरियल तो क्या है, 1 डे ओल्ड चिक ही है ना, बाकी फीड है। फीड के ऊपर तो, मील के ऊपर तो गवर्नमेंट ने वैसे ही बहुत सा कंसेशन दिया हुआ। नहीं, वो महंगी इसलिए नहीं है कि वो इंटरनेशनली महंगी है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स महंगे हैं। वो महंगी इसलिए कि हमने उसमें प्रॉफिट इंश्योर किया हुआ है। HACCP के नाम से एक स्टैंडर्ड है कि जो कंपनीज फूड बना रही हैं या पोल्ट्री में या फिशरीज में, दे शुड अडॉप्ट HACCP स्टैंडर्ड। अब वो स्टैंडर्ड रिलेट करता है प्रोसेसिंग ऑफ फूड की, उसमें सैलरी मेजर करने चाहिए, खराब ना हो जाए, प्रिजर्वेशन होनी चाहिए, हर पार्ट को कंट्रोल करते रहें, प्रोसेस ठीक करें। तो ये HACCP जो एक उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ एक मैनुअल है, इस
देखिए जो चीज़ व्हाट इट सेड वाज कि द प्रोडक्ट, द प्रोसेस और पैकिंग इज इंक्लूडेड इन सैनिटरी, फायर सैनिटरी, टीबीटी में नहीं था. अब इफ़ यू कुड कम बैक टू दियर लिस्ट. नहीं पैकिंग नहीं, इसकी एक मिनट ज़रा आएंगे वापस जी. ये अब आपको आना पड़ेगा. स्कोप में आ जाए. Slide 14. Now it relates to products, processes and production. Now while आपने यहाँ तक तो काम बड़ा फर्स्ट क्लास कर लिया और पैकिंग और प्रोसेस के दरमियान you have left unhygienic conditions or you have not complied with the SPS. तो what will happen? Your packing, आप कुछ भी हो लेकिन the stuff packed into it, this is a question of common sense I believe. कि जब आप प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, प्रोसेस की बात कर रहे हैं, एंड प्रोडक्शन इंटेल्स प्रोड्यूसिंग एंड पैकिंग बोथ. लेकिन अगर आप उसके ऊपर ये बात कर रहे हैं कि जो पैक्ड चीज़ आ रही है आपने उसके ऊपर उसकी लिखी हुई है कि इसमें इतनी वाइटामिन है, इतनी न्यूट्रिशन वैल्यू, और वो नहीं है उसमें, तो वो टेक्निकल रेगुलेशंस में जाएगा. जो उसकी पैकिंग के हाइजीनिक फॉर्म में हुई है, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए गए हैं, प्रोसेस ठीक है, वो SPS में आएगा. अभी हम एंड में चल के थोड़ी सी एग्जांपल्स देखेंगे, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा. इसी तरह केस नंबर 3 स्लाइड 18 में यू विल फाइंड प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल और प्लांट हेल्थ. अब इसमें यह है कि फॉर इंस्टेंस जिस तरह ये था बैन ऑन लाइव कैटल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हर्ड्स इन्फेक्टेड बाय बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस है, वुड बी वन एग्जांपल ऑफ SPS. or May is taken with the objective of avoiding the introduction and spread of such diseases. It will also be in the SPS. या एक फ्रूट फ्लाई का एक होता है कि वो एक फ्रूट फ्लाई है जो कि उसको रेड कर देती है फ्रूट को या वेजिटेबल को. तो हमारे मुल्क में तो उसको बस झाड़ के हम वी जस्ट ईट इट, और हम इतने माशाल्लाह इम्यून है. ये भी अल्लाह का एक बड़ा फजल है कि अगर हमें ये फैसिलिटीज़ नहीं है तो द लॉर्ड ऑलमाइटी इज़ सो काइंड टू अस कि ही हैज़ इंक्रीज्ड एंड इम्प्रूव्ड आवर इम्यूनिटी सिस्टम. तो हमें उन चीज़ों से गर्मा कटा हुआ है, बर्फ़ में लगा हुआ है, वी जस्ट स्पार्क आवर कार एंड वी बड़े मज़े से हम खाते हैं. अब अगर यही चीज़ आप उस मुल्क में जाके खा लें तो आप बीमार पड़ जाएंगे क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है. तो अगर हमें रब ने एक तरफ से डिप्राइव किया हुआ है इतने स्टैंडर्ड से, तो दूसरी तरफ हमें बहुत हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग किया हुआ है. So these are some of the examples, and then the other example is protection of a country from damage caused by the entry, establishment or spread of pests. Now it's again कि आप कोई ऐसी weeds या कोई ऐसी चीज़ नहीं ले जा रहे जिसकी वजह से ये ना हो. अब ये सारी बातें जो हैं ये हमने देखी हैं, माइन्यूटली गए भी हैं, कुछ सवालात भी आपने किए, मैंने भी कोई टूटे फूटे जवाब देने की कोशिश की. ये what is it all about? ये है क्यों? Again हम ये समझ रहे हैं कि जी ये बिल्कुल प्रोडक्ट स्टैंडर्ड की बात हो रही है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है. बट व्हाट द डेवलप्ड कंट्रीज आर लुकिंग एट टू वॉच देयर इंटरेस्ट. सिंपल. बिल्कुल, दैट इज द आंसर. जी टिन पैक्ड फूड इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. जी टिन पैक्ड फूड में तो सबसे पहले तो एक केस एंटी डंपिंग अब आप सारे पढ़ चुके हैं और प्रोडक्ट स्टैंडर्ड भी पढ़ चुके हैं. एक केस नेशनल टैरिफ कमीशन ने किया टिन प्लेट की, सेकेंडरी टिन प्लेट की इंपोर्ट के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगाई अगेंस्ट साउथ अफ्रीका. अब वो टिन प्लेट के ऊपर इसलिए ड्यूटी लगी कि वो यहाँ पर डंप हो रही थी. डंपिंग का जो एंगल था वो तो हमने उसमें डिस्कस कर लिया था कि वो इकोनॉमिक आइडेंटिसिटी नहीं है दोनों प्रोडक्ट्स में, कि एक प्रोडक्ट जो है वो इकोनॉमिकली बिल्कुल दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करता और उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी इस हद तक मैच करती हैं कि वो दे लुक अलाइक. अदरवाइज एक सेकेंडरी क्वालिटी है, एक प्राइम क्वालिटी, दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड. नाउ सिंस यू हैव गॉन थ्रू दी TBT एंड SPS टू सम एक्सटेंट, अब सेकेंडरी टिन प्लेट का जिस तरह पैकिंग की बात somebody raised कि इफ़ यू आर पैकिंग फूड इन अ रस्टेड टिन प्लेट, व्हाट इज गोइंग टू अल्टीमेटली हैपन? Okay.
नहीं, अभी अब हम इसकी तरफ नहीं जा रहे कि वो SPSI है क्या है। हम हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो जो डिसीजन उस वक्त गवर्नमेंट ने लिया, क्या वो एंटी डंपिंग के अगेंस्ट लेना चाहिए था या SPS के तहत लेना चाहिए था? You are again different like others, huh? Anyway, अब we'll try to see what sort of sanitary measures can take, and such as imposing specific product or process criteria. अब प्रोसेस कर रहे हैं, अगर आप लाइक पोल्ट्री को पैक कर रहे हैं तो वो फ्रॉम स्लॉटरिंग टू ड्रेसिंग एंड फ्रॉम क्लीनिंग, चिलिंग, उसमें कोई प्रोसेस, कोई कंडीशन लगा सकता है जी कि ह्यूमन हैंड उसको ना लगे। एक ये कंडीशन आ सकती है कि वो हमारे आई डोंट वांट टू नरेट दैट एग्जांपल, बट इफ़ यू सी समबडी जो कोई पूरी सुबह तल रहा हो तो व्हाट ही इज़ डूइंग, एंड वी आर ऑल वेरी हैप्पी टू ईट इट. You must have seen the conditions under which he is making. So he is doing so many things at the same time. Less said the better. Anyway, there could be 101 conditions which a country may impose कि पैकिंग के वक्त ह्यूमन हैंड ना लगे, वो चीज़ डस्ट से ना एक्सपोज हो, ये हाइजीनिक में है और वो फ्रेश की फ्रेश उसमें चली आ रही है. अब एक चीज़ का फ़र्क ये देखिए, यहाँ पर ही आके रुक जाएगा. ब्लड इज़ बाई नेचर इंजूरियस टू हेल्थ. What Islam says, if you slaughter anything, let the blood flow out of the slaughtered, whether it's a chicken or it's whatever animal it is. But West में they would just chop it off and retain the blood. अब अगर उनको कोई ये समझाए कि आपके सारे SPS धरे के धरे रह जाएंगे, when you don't let the blood flow out, that is law of nature. Then you got conditions or requiring products to come from disease-free areas, like SARS की एक example है. आप ये लगा सकते हैं कि goods are coming from China, edible, so you can say no, we can't have it because it's coming from a diseased area. Yes. You know, it's a good question he has raised. Abab, if you go back to the history of WTO which we started, तो आपने एक चीज़ शायद नोट की हो कि इस्लामिक सोसाइटी की तरफ से या इस्लामिक उम्मा की OIC की तरफ से या किसी और कम्युनिटी की तरफ से ये एस्पेक्ट कभी WTO में नहीं उठाया गया कि you are talking of everything. Now Muslims have got about 56 countries out of the total number of जी out of 184, 56 जो ममालिक हैं वो मुसलमान हैं. तो आप जो इंपोर्ट्स की जो रेगुलेशंस हैं वो मुस्लिम कंट्रीज़ को या तो इन्होंने दी नहीं है या उन्होंने मानी नहीं है. अगर दी होती ना मानी होती तो कहीं ना कहीं जो बेसिक सिलेक्टेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं गैट के या जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती, जो एटलीस्ट मेरी नज़र से, आई एम नॉट अ वेल रेड मैन, लेकिन मेरी नज़र से अभी तक नहीं गुजरी है कोई ऐसी कंडीशन जो मुस्लिम्स ने कहा हो कि जी ये हलाल का कॉन्सेप्ट है, इसको आप हमें WTO के तहत प्रोटेक्शन दें कि हम अगर कोई चीज़ ऐसी आ रही है अपने मुल्क में तो उसको रोक सकें. या कोई ऐसी चीज़ जो कि अगेंस्ट आर रिलीजन है, जिसमें कोई ऐसा मटीरियल ऐड किया गया है जो कि फॉर दे सो मैनी अदर थिंग्स कि जिस तरह अल्कोहल, इफ़ इट्स एन लाइफ सेविंग ड्रग, इस्लाम सेज यू कैन यूज़ इट. बट इफ़ यू आर टेकिंग एज अ सिंपल मेडिसिन, इफ़ यू आर टेकिंग एज फॉर, जिस तरह एक ज़माने में कोडीन बहुत सारे लोगों ने पीनी शुरू कर दी थी, इट हैड गॉट अल्कोहलिक मटीरियल इन इट, तो उसको आप रोक सकें. यस Buddhists, they are vegetarians. Still, they have not raised the point. Any vegetarian, any other meat or other things are coming which is against Buddhism. You know they are total. देखिए वो हलाल, वो उसमें दो चीज़ें हैं. वेजिटेरियन, यू हैव रेज द पॉइंट, लेकिन उसमें तो वो इम्पोर्ट्स ही नहीं कर रहे ना. अगर वो वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन के लिए वेजिटेरियन स्टफ इज़ अवेलेबल फ्रीली. लेकिन विद योर कंट्री वेयर इज़ द डिमार्केशन कि दिस थिंग कंटेन्स अल्कोहलिक और अ बैंड आइटम एज पर द इस्लामिक लेजिस्लेशन? मेरा नहीं ख्याल कि कोई है.
ये सर इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा, हमारे घर में जो स्टार्टर है उससे इसमें 1896 में नाम बना हुआ है कि फूड है, इसमें वेटरनरी डॉक्टर बैठते हैं स्टार्टर हाउस, वो इंश्योर करते हैं कि एनिमल फ्री फ्रॉम प्लस ब्लड सिस्टम, ये उसमें उस नाम में शामिल है। मुस्लिम को जो ऑर्डर नहीं है दैट शुड बी फ्री फ्रॉम द ब्लड। तो ये अभी भी आप पूछे, अभी भी ये जो उनका भी आपके प्लान है इसमें स्टेप में नहीं है बात है उसकी लेकिन वो ड्यूटी आपको वर्तनी ऑर्गेनाइज कर रहा है उसमें नहीं, हम डोमेस्टिक की तो बात ही नहीं ना कर रहे, अभी तो हम इम्पोर्टेड गुड्स की बात कर रहे हैं। बना गया और वाली भी बना नहीं, इट्स नॉट सो सिंपल जिस तरह से आप उसको प्रिडिक्ट पिक्चर कर रहे हैं, इट्स नॉट सो सिंपल, it's different. What about pepsin? If you are talking of Pepsi, Gelatins जो यूज होते हैं, so we have got divergent views in the class. So टेलो जो आप यूज कर रहे हैं, you know what is टेलो? टेलो जिससे साबुन बनता है, चर्बी, टेलो। अब बाहर से टेलो आता है, हमारी मेजर इंपोर्ट्स टेलो की ऑस्ट्रेलिया से हैं। कौन सी फैट है? लार्ड है। यू नो व्हाट इज लार्ड? लार्ड इज पिग फैट। अब वो लार्ड उसमें टेलो में यूज हुआ है या काओ टेलो यूज हुआ है, उसकी तो कोई डिस्टिंक्शन है ही नहीं वहाँ। तो वहाँ तो इतने बड़े ह्यूज ड्रम्स, ह्यूज सिस्टम, उसमें सारी चीज़ वो डंप किए जाते हैं। टूथपेस्ट है सब। अब डिस्कशन से हम थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर जाएंगे। Somebody asked me and some other person must have also been questioned. वो एक बात पूछते हैं वेस्ट वाले कि when you go there and if they offer you ये bacon जो pig meat होता है, तो no we cannot. But at the same time, if they offer you hard drink, you would request for another bottle. It's the same legislation, it's the same Quran, it's the same principle which declares both of them as haram. So it's a discussion, let's not get into it. जी क्या रहा? Lesser of the two evil. It's a difficult discussion, let's not get into it. कहते हैं religion, love, and what is the other thing which should not be discussed? And politics? No. That's included in love, unless you take them otherwise. We are discussing this thing under SPS and technical things. We are not. Right. जूस का भी है, कॉशर कहते हैं उसको। नहीं, लेकिन चलिए ये लॉ में आया है या नहीं आया है, इट्स अ सेपरेट थिंग, बट हैज एनी कंट्री रेज्ड दिस इशू? तो ये रेस करना चाहिए ना। अभी आप कैनकुन में जा रहे हैं, सारे पूछते हैं, कॉमर्स मिनिस्टर पूछता है, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर पूछता है, क्या बात करें भाई? आप पहले तो ये बात करें जो आपके सिस्टम से प्रिवेल करती है, जो आपके सिस्टम से मैच करती है। स्टार्ट विद दैट। कितने, जब उनको इतने प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स में प्रोटेक्शन आप दे सकते हैं, तो आप अपनी कितनी केमिकल इंडस्ट्री को दे सकते हैं? आप अपनी टूथपेस्ट इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप जैम्स एंड जेली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेस्ले के खिलाफ इतना कुछ हुआ है। नेस्ले का जो एवरीडे जो आया है, उसके अंदर भी उन्होंने कहा जी कि देयर इज समथिंग। वॉल्स के खिलाफ भी आ रहा है। Incidentally, you talked about Parliament. Anyway, जी, अब coming to slide 20, we were looking at some things. Slide 20. So we've got requiring foods to come from disease-free area. Then you've got quarantine regulations. Now, what are quarantine? What is quarantine? Stays for a while. And then it is for First check. It is for What What do you do in quarantine?
व्हाट नहीं करते क्या हैं, वो तो ठीक है, यू बंद कर देते हैं, यू कॉर्नर देम, एक आइसोलेट कर देते हैं, दैट्स द राइट वर्ड, यू आइसोलेट थिंग। फिर उसमें उसको एग्जामिन में रखते हैं, यू पुट इट अंडर टेस्ट एंड वॉच सुपरवाइज। देन यू गॉट सर्टिफिकेशन और इंस्पेक्शन प्रोसीजर्स हैं, सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, हेल्थ रिलेटेड लेबलिंग मेजर्स हैं, सेटिंग परमिसिबल मैक्सिमम लेवल्स ऑफ पेस्टिसाइड्स, समबडी रेस्ट के कितने परसेंट हो जाए, इतने परसेंट होगा तो वो अलाउड है, इतने परसेंट होगा तो नहीं अलाउड है, एंड permitted use of only certain additives in food. And some of these measures may take place in exporting country, क्योंकि जो processing के ऊपर है वो तो आप exporting country पे करेंगे, जो testing के हैं और दूसरे हैं वो importing country पे होंगे। And basically its purpose must be to protect health within the territory of the importing country. इसका बेसिक पर्पज़ ये होना चाहिए। अब अनलेस वी नो द लॉज, वी आर फेमिलियर विद द रूल्स, हमें पता ही नहीं लगेगा कि वो जो अगला जो कंडीशंस लगा रहा है, व्हाट आर द मोटिव्स बिहाइंड इट, आर दे टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन और द इंडस्ट्री। ख़राब तो बहुत अच्छी, ख़राब के तो वो होता है जो ठीक हो सके। जो कंट्री है सारे के सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करवाना चाहती हैं, जो इंपोर्टिंग कंट्री है, तो उसको ये प्रूव करना पड़ता है कि डोमेस्टिकली